students, welcome to maths class and today we'll do rational numbers. So about rational number we have read earlier also. उसी concept को आगे हम detail में पढ़ेंगे. So in this chapter the concept we will cover are rational number and their properties, representation of rational number on the number line, comparison of the rational number between two rational numbers, addition and subtraction of rational number and multiplication and division of rational numbers. So ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर करेंगे. Start with the activity. Sometime a number is not increased or decreased in integral number. It may be a fraction or a negative number. Such numbers are represented by the rational numbers. In winters, the temperature of the hilly areas go down by 11/2 degrees Celsius, or it is represented as the temperature of the place is changed by -11/2 degree Celsius. Because टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव में शो करेंगे. सो हियर हम क्या कर रहे हैं, रैशनल नंबर का यूज कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन. We have already learned about the natural number, whole number, integral, fraction and their four operation. The number which are used for the counting purpose, they are known as counting number या natural number. जैसे कि 1, 2, 3, 4, all these are counting numbers. Natural number including 0 वो कहलाते हैं whole numbers like 0, 1, 2, 3, 4 so on. ये सारे क्या हो जाएंगे, whole numbers. Whole number including negative of natural number are called the integer. Clear? उनको हम कहेंगे integers like -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. All these are integers. Next is fraction. Fractions are written in the form of a upon b, where a is called the numerator और b कहलाता है denominator. Beside the number, sometimes we have the other number like -1/5, -3/7, etc. For representing such number, we need a new number system जिसको हम कहते हैं rational numbers. So एक नया number system यहाँ से rise होता है, that is known as rational numbers. So rational numbers is any number which can be expressed as a upon b, where a and b are integers and b is not equals to 0. So rational number जिनको हम a upon b की फॉर्म में लिख सकते हैं, a और b दोनों इंटीजर होंगे and b कभी भी 0 नहीं होगा. For example, -5/9, 3/17, -6/18, -13/23, all these are rational numbers. First we'll take the positive rational numbers. A rational number is said to be positive if its numerator and denominator are either both positive or both negative. अगर दोनों positive है या दोनों ही negative है तो क्या हो जाएंगे वो positive rational number like 6/7, -18/20, -23. Because negative negative cancel हो जाएगा तो positive हो जाएंगे. Clear? Do you know the term rational comes from the word ratio? ये जो term rational है ये किससे लिया गया है, जो term है ratio उससे. Next is negative rational numbers. A rational number is said to be negative if either the numerator or denominator is negative. Means numerator और denominator से कोई भी एक चीज़ अगर negative है तो वो rational number negative होगा. Like -3/5, -16/28, 9/-25, -14/37. So ये क्या हो जाएंगे, negative rational number. So number system would be more clear with the help of the following chart. Number system दो में हमने डिवाइड किया, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर वी आर नॉट डूइंग हियर. रियल नंबर्स को अगेन विल डिवाइड इनटू रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. रैशनल नंबर अगेन डिवाइडेड इनटू इंटीजर, होल नंबर्स एंड देन नेचुरल नंबर्स. क्लियर? लर्निंग टिप्स. एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर. Since 5 can be written as 5/1, that is equals to 5, हम इसको a upon b की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा एक रैशनल नंबर. सो 47 इज ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज हम इसको p/q a upon b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर सिंस 0 कैन बी रिटन एज 0/1. एवरी इंटीजर इज ऑल्सो रैशनल नंबर सिंस -7 कैन बी रिटन एज -7/1. सो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा. एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर. As we know that the every natural number is an integer, so the quotient of two integer is a rational number. -7/8 is a rational number, but not a fraction because numerator is negative integer. So fractions में
नेगेटिव को हम कंसीडर नहीं करते, बट इन रैशनल नंबर हम न्यूमरेटर को नेगेटिव ले सकते हैं, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टी 1, equivalent rational number. When the numerator and denominator of the rational numbers p upon q are multiplied by the same non-zero number, then the value of rational number does not change. If p upon q is a rational number, then n is a non-zero integer. अगर हम दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल -5/7, so multiplied by 2, both the numerator and denominator will get -10/14. So ये क्या हो जाएंगे? Equivalent rational number. Now we'll take an example here. Write 4 equivalent rational number to each of the following rational number. -3/7 की हमें 4 equivalent rational number लिखने हैं. So what we'll do? We'll multiply both the numerator and denominator by the same non-zero number, like 2 से कर लिया, then 3 से, then 4, then 5. So what number we'll get? 12 upon -22, 18 upon -33, 24 upon -44, 30 upon -55. All these are equivalent rational number. Clear? Next, property 2. Reducing to the simpler form. When the numerator and denominator of rational number p upon q is divided by the same non-zero number, means न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? इफ p अपॉन q इज रैशनल नंबर, देन m इज अ कॉमन डिवाइजर। अगर दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है m, उससे अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। लाइक -24/36 डिवाइडेड बाय 12, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल गेट -2/3. दैट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ -24/36. एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सप्रेस -50/70 एज अ रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज 5. सो हमें यहाँ न्यूमरेटर क्या करना है? 5. सो टू गेट द न्यूमरेटर एज 5 वी हैव टू डिवाइड इट बाय, इसका न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का -50/70 का जो न्यूमरेटर है उसको हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 50 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 5. दैट मीन्स हमें डिनोमिनेटर को भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? सो हम दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 5/-7. क्लियर? सो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर क्या आ गया? 5 एंड डिनोमिनेटर हो गया -7. नेक्स्ट, लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. A rational number p upon q is said to be in the lowest form if p and q both have the common factor other than 1. Have no common factor other than 1. Means दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. दैट मीन्स दे आर इन लोएस्ट फॉर्म. टू कन्वर्ट द रैशनल नंबर टू इट्स लोएस्ट फॉर्म विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF. क्लियर? नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म. A rational number in the lowest form is said to be the standard form if the denominator is positive. So standard form के लिए वो lowest form में होना चाहिए and denominator positive होना चाहिए. Clear? तो वो standard form में होगा. Example लेते हैं. Express each of the following rational number in the standard form. -32/36. So first हम इसको lowest term में convert करेंगे. So इसका HCF क्या हो जाएगा? 4 से divide करेंगे will get -8/9. Clear? ये लोएस्ट फॉर्म में हो जाएगा एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हमारा पॉजिटिव है. दैट मीन्स ये क्या हो गया? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म. नेक्स्ट, सम मोर एग्जांपल्स आर गिवन हियर, यू हैव टू प्रैक्टिस देम. नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन टाइम 2.1. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. सो दैट इज फॉल्स. Next, choose positive or negative rational number from the following. So in first one, -6/7. Here the numerator is negative. That means this is a negative rational numbers. Clear? Next, write 4 equivalent rational number to the given rational number. So -4/13. We have to find 4 equivalent rational numbers. So we'll multiply both the numerator and denominator by 2, then 3, then 4 and then 5. Like ये हो जाएगा -8/26. Next, -12/39.
Like this, you'll multiply by 4 and then 5, so you'll get 4 equivalent rational numbers. Clear? Next, express minus 7 upon 18 as a rational numbers whose numerator is 21. So numerator, we have to make the numerator 21. Here the numerator जो हमारा है क्या है, -7 है and नेगेटिव है, हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है एंड 21, 7 3s are 21, दैट मीन्स विल मल्टीप्लाई बाय 3, बट नेगेटिव हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स विल मल्टीप्लाई बाय -3. सो -7 upon 18 multiply by -3 and multiply by -3. So that is equals to 21 and -54. Clear? Next, express minus 420 upon 870 as a rational number whose numerator is 28. So हमें numerator को क्या करना है, 28 करना है एंड यहाँ पे हमारा numerator क्या है, -420. क्लियर? एक तो हमें पॉजिटिव करना है एंड लेस करना है, दैट मीन्स हमें डिवाइड करना पड़ेगा 20 upon 870. Clear? Now we have to make the numerator as 28. So हम किस नंबर से डिवाइड करें so that we'll get 28 एंड सेम नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को. So we'll divide it by -15. -15 से डिवाइड करेंगे, so we'll get 28 अपॉन, so उसको डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू -58. क्लियर? नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. So -12 upon 70, standard form, that means it should be in lowest form and denominator should be positive. So denominator तो already positive है, इसको हम lowest form में change कर देंगे. So 6 upon 35, -6 upon 35 हो जाएगा, that is the lowest form. Clear? Next, fill in the boxes. -17 upon 65, that is equals to 85. यहाँ पे इक्वलेंट फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर क्या हो गया, 85. मीन्स -17 को हमने -5 से मल्टीप्लाई किया, सो विल गेट 85. सो हम 68 को भी -5 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे. चेक वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल और नॉट. So we have to check whether the following rational numbers are equivalent or not. For that, we'll use the cross multiplication method, -3 upon 14 and -5 upon 27. Cross multiply कर लेंगे. So -3 into 27 equals to -5 into 14. -81 and -70. So they are not equivalent fraction. Clear? Because इनकी वैल्यू जो है वो चेंज है, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है. नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. नाउ वी लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. प्रोसीजर, ड्रॉ द नंबर लाइन एज गिवन. जैसे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 एंड लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स एंड राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर. नाउ डिवाइड ईच लेंथ इनटू मेनी इक्वल पार्ट एज द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर. जो भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर होगा उसके बीच में हम जो यूनिट लेंथ है, मीन्स एक नंबर के दो नंबर के बीच की जो लेंथ है उसको उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे. सपोज वी हैव टू रिप्रेजेंट 2/7 ऑन द नंबर लाइन. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 7 है. दैट मीन्स हर नंबर को हम 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे. So denominator of the given rational number is 7. So we will divide each unit length into 7 equal part. So 7 equal part में divide करेंगे. So 0 के बाद जो first part होगा that is 1/7 and second part किसको represent करेगा, 2/7 को, like here. Clear? Next, comparison of rational number. कैसे compare करेंगे? Procedure. A positive नंबर, रैशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव रैशनल नंबर. जो पॉजिटिव रैशनल नंबर है वो हमेशा नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़ा होगा.
इफ बोथ द रैशनल नंबर हैव द सेम साइन देन वी प्रोसीड एज फॉलो। अगर साइन सेम है तो कैसे कंपेयर करेंगे? एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द रैशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स। जितने भी रैशनल नंबर है जो हमें गिवन है उनका हम क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देंगे। देन विल फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर। एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर इक्वल टू देयर एलसीएम। जैसे कि हम पहले करते थे उसी तरीके से करेंगे, डिनोमिनेटर जो है वो सेम करेंगे। देन विल कंपेयर द नंबर हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। एग्जाम्पल लेते हैं, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर 5/13 एंड 18/39। सो विल कंपेयर, वी हैव टू कंपेयर। सो व्हाट विल डू, दोनों का पहले हमने डिनोमिनेटर चेक कर लिया, पॉजिटिव है। अब हम एलसीएम लेंगे 13 एंड 39 का। एलसीएम क्या हो जाएगा? 39। नाउ विल मेक डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इक्वल टू देयर एलसीएम। सो 5/13, 39 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, सो दैट इज 3 टाइम्स। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 13 को भी 3 से। सो ये हो जाएगा 15/39, ये हो जाएगा 18/39। सो नाउ विल कंपेयर द न्यूमरेटर। 15 इज लेस देन 18, दैट मीन्स जो फ्रैक्शन है 5/13 दैट इज लेस देन 18/39। क्लियर? सो दिस इज द वे वी कैन कंपेयर टू रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। सो दो रैशनल नंबर के बीच में वी हैव टू फाइंड द रैशनल नंबर्स। सो प्रोसीजर, कन्वर्ट द गिवन रैशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर बाय टेकिंग एलसीएम। पहले हम डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, देन फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन देम। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड 1/2। सो व्हाट विल डू, फर्स्ट विल मेक द डिनोमिनेटर सेम। 5 और 2 का एलसीएम लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 10। क्लियर? अब हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया तो एक फ्रैक्शन हो गया हमारा -6/10 एंड अदर इज 5/10। Now we can write the rational number between these two rational number like -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10। क्लियर? इस तरीके से हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं कोई 5। लर्निंग टिप्स, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू में हमें पता है हम साइन को कंसीडर नहीं करते, वी ओनली कंसीडर इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ विद द पॉजिटिव साइन, लाइक p/q। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? p/q, माइनस p/q की भी p/q। फॉर एग्जाम्पल -3/7, सो एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी 3/7। क्लियर? नेक्स्ट इज इवोल्यूशन टाइम 2.2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर नंबर लाइन 15/7। सो डिनोमिनेटर 7 है, पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, पॉजिटिव है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। नाउ डिनोमिनेटर 7, तो हम क्या करेंगे 7 इक्वल पार्ट में 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर? नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट 15/7। सो ये हो जाएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 14/7 एंड इसके बाद जो आ जाएगा दिस विल रिप्रेजेंट 15/7 बिकॉज 14/7 क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 2। सो उसका नेक्स्ट जो होगा पार्ट दैट विल बी 15/7। नेक्स्ट, फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। सो वी हैव टू कंपेयर 5/6 एंड -2/5। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम इजीली चेक कर सकते हैं, लाइक ये हो जाएगा 5 5s are 25 and 6 2s are 12। दैट मीन्स 5/6 will be greater than -2/5। Clear? Next, compare the following rational number 7/15 and -5/12। So यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज कर रहे हैं बिकॉज इट्स लाइक क्विक मेथड टू फाइंड आउट वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्वल और कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा। सो ये हो जाएगा 12 × 7 एंड ये क्या है? नेगेटिव हो जाएगा -5 × 15। सो 7/15 will be greater than
-5/12। वैसे भी कोई भी अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है सो दैट विल बी ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग। क्लियर? सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। इन सब में जो सबसे छोटा हो जाएगा, अब हमें कंपेयर करने के लिए फर्स्ट विल हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम बाय टेकिंग द एलसीएम 4, 8, 12 एंड 16 का। सो एलसीएम जो हो जाएगा 48। सो फर्स्ट इज -3/4। हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -36/48। नेक्स्ट वाला जो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो नेक्स्ट हो जाएगा -48 -24/48 एंड लास्ट वाला जो हो जाएगा, लास्ट वन इज 15/48। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। अब हम क्या कंपेयर करेंगे? हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। सो सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा वो हो जाएगा -36/48, देन -24/48, then -18/48 and the greatest will be 15/48। तो इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सेम वे रहेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर को सेम करना है बाय टेकिंग एलसीएम एंड देन हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड मूव टू द स्मॉलेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, राइट 2 रैशनल नंबर बिटवीन -3 and 2। So here we have to write 2 rational number between -3 and 2। क्लियर? डिनोमिनेटर सपोज दोनों का ही 1 है तो क्या हो जाएगा? -2/1 लिख सकते हैं, -1/1 लिख सकते हैं। ये 2 रैशनल नंबर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, राइट 4 रैशनल नंबर बिटवीन। सो हमें 4 रैशनल नंबर लिखने हैं, -6/13 एंड 2। इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तुम किस तरीके से लिखेंगे? -6/13 एंड 2/1। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। ये हो जाएगा डिनोमिनेटर 13, एलसीएम क्या हो जाएगा? 13। ये हो जाएगा -6/13, ये हो जाएगा 13 2 26/13। नाउ वी कैन राइट -5/13, -4/13, -3/13, -2/13, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, राइट T for true and F for false। The rational number 3/7 is left to the 0 on the number line। So 3/7 क्लियर? लेफ्ट में नहीं होगा बिकॉज पॉजिटिव है तो दैट मीन्स राइट में होगा। क्लियर? लेफ्ट में क्या होते हैं? जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं। सो 3/7 क्या होगा? राइट में, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। फर्स्ट विल टेक द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। Case 1, when denominator of the given rational number are same, then we'll simply add the numerator and write the common denominator below। Suppose p by q and r by q are 2 rational number। So p by q plus r by q क्या हो जाएगा? हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे p plus r upon q। Add the following -5/13 and 2/13। डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे -5 + 2/13, दैट इज इक्वल्स टू -3/13। केस 2, when denominator of the given rational numbers are different। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट विल फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन रैशनल नंबर, देन कन्वर्ट द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल रैशनल नंबर इक्वल टू द एलसीएम बाय मल्टीप्लाई बाय द सुटेबल नंबर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नाउ सिंपली ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। सो उसके बाद तो जैसे हम करते हैं उसी तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। ऐड द फॉलोइंग -3/14 and 13/21। Now denominator are different. First we'll make the denominator same by taking the LCM। So 14 and 21 का LCM क्या हो जाएगा? 42।
तो हम डिनोमिनेटर सेम कर देंगे -9/42 एंड 26/42। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। हम ऐड कर लेंगे, किस तरीके से करेंगे, अब हम दोनों को ऐड करेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया है। तो सिंपली हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे -9 प्लस 26 -9 प्लस 26/42 दैट इज इक्वल टू 17/42। क्लियर? सो इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। द सम ऑफ द रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ इट्स ऑलवेज जीरो। किसी भी रैशनल नंबर उसके नेगेटिव जो है, उसका नेगेटिव नंबर है, उनका सम क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर? सो the negative of the rational number is called the additive inverse of the given rational number. Like 13/25 इसका नेगेटिव हो जाएगा -13/25, दोनों को ऐड करेंगे तो सम क्या हो जाएगा, जीरो। सो 13/25 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -13/25, और -13/25 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 13/25। If p by q is a rational number, then -p by q is the additive inverse of p by q, and p by q plus -p by q that is equal to 0. एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपली बाय रीअरेंजिंग द रैशनल नंबर हमें ऐड करना है -2/5, 5/8, -7/15, -7/3 प्लस -11/8। सो हम क्या करेंगे, 5, 3 एंड 15 हमें पता है, जो 3 की टेबल में क्या आता है, 15 आता है, एंड 5 की टेबल में भी आता है। सो एलसीएम लेना वाले ईजी हो जाएगा। हम इन तीनों को एक साथ करके एलसीएम ले लेंगे 15 एंड ऐड कर देंगे। एंड 4 और 8 का हमें पता है, 4 का 8 जो है 4 का मल्टीपल्स है, तो उनको हम साथ में लिख देंगे और ऐड कर देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से ऐड कर देंगे एंड देन फिर जो भी आएगा सम उन दोनों को ऐड कर देंगे। -18/15 प्लस -17/8। नाउ 15 और 8 का एलसीएम लेंगे दैट इज 120, और जिस तरीके से हम ऐड करते हैं -399/120, इसको लोएस्ट में चेंज करेंगे -133/40। ये तो हमने किया एडिशन। नाउ विल डू सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। Subtraction is the inverse of addition, so we add the negative of the number. Like p by q and r by s are two rational number. Then p by q minus r upon s that is equals to p by q plus minus r upon s. Example लेते हैं। Subtract the following. 4/9 को subtract करना है 5/18 में से। So 5/18 minus 4/9, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 18। So that is equals to 5 into 1 minus 4 into 2. So that is 5 minus 8/18 that is equals to -3/18. Lowest में change करेंगे -1/6. Clear? Next, learning tips. The difference between two rational numbers is always a rational number. So only closure property exists for the subtraction of rational number. Clear? Next, evaluation time 2.3. Fill in the blanks and write the name of the property used. So -15/16 plus 5/18 is same as 5/18 plus -15/16. So this is the commutative property. इस किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे सम सेम रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। -6/23 प्लस 4/23। डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे -6 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू -2/23। ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। -5/36 प्लस 7/12। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 36। नाउ -5 एंड प्लस 12 3s are 36, 7 3s are 21. So 21 में से हम 5 माइनस कर देंगे, so that is equals to 16/36. अब हम इसको लोएस्ट में चेंज कर देंगे, 4 4s are 16, 4 9s are 36. So 4/9 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, simplify the following. -3/7 plus -3 plus 5/14 plus -7/42. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा हो जाएगा 42 एंड देन जैसे हम करते हैं
उस तरीके से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 42 हमने एलसीएम ले लिया है, सो 42 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे सो 6 आ जाएगा, 6 इंटू -3 कर देंगे, क्लियर। सो 18 -18 अपॉन 42 आ जाएगा। इस तरीके से हम, जैसे यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो उसको 1 कर देंगे एंड डिनोमिनेटर सेम करके जैसे सिंपली हम ऐड करते हैं उसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट, सिंपली बाय रीअरेंजिंग द रैशनल नंबर, सिंप्लीफाई बाय रीअरेंजिंग 3/10 प्लस 4/11 प्लस -11/20 प्लस -7/33। तो रीअरेंज करेंगे 10 एंड 20, 10 के मल्टीपल्स हैं, इनको हम साथ साथ लिख देंगे। 3/10 एंड ये हो जाएगा -11/20, क्लियर, क्योंकि माइनस का साइन है, प्लस 4/11 एंड -7/33। ये हो जाएगा एलसीएम 20, 6 -11/20 प्लस एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 33, 11 3 से 33, ये 12 हो जाएगा -7, सो दैट इज इक्वल्स टू -5/20 प्लस -5/33। अब हम क्या करेंगे, 20 एंड 33, पहले हम इसको लोएस्ट में चेंज कर सकते हैं, 5 × 5, 4 एंड 33 का एलसीएम ले लेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, उसको जिस तरीके से ऐड करते हैं डिनोमिनेटर सेम करेंगे एंड देन हम जिस तरीके से ऐड करते हैं उसी तरीके से हम ऐड कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। -5/9, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/9, क्लियर। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर, सो सब्ट्रैक्शन करना है -5/13 एंड -6/39, -5/13 -6/39, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 39, 13 3 ज़ा 39, 5 3 ज़ा 15, -6, सो दैट इज इक्वल्स टू, दोनों ऐड हो जाएंगे बिकॉज दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, -21/39। नाउ हम इसको लोएस्ट में चेंज कर देंगे, -7/13, clear. Next we'll do multiplication and division of rational numbers. So multiplication of rational number लेते हैं पहले, multiplication of rational number that is equals to product of two rational number किसके equal हो जाएगा, product of numerator upon product of denominator. Like if p/q and r/s two rational number है तो उनका जो product क्या हो जाएगा, p into r numerator का product upon denominator का product q into s. Learning tips. If both the rational numbers are positive, product will be positive. If both are negative, product will be positive. One is positive, other is negative, product will be negative. अगर एक negative है दूसरा positive तो product क्या होगा, negative. Example लेते हैं, multiply the following 7/20 into -5/14. Clear? तो simply हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट अपना डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, सो ये हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 7/20 इंटू 5/14, हमने माइनस का साइन जो है कॉमन लेके बाहर ले लिया है, सो ये हो जाएगा 5 × 5, 5 4 40, 20 हो जाएगा, 5 4 20, 7 1 7, 7 2 14, so that is equals to -1/8. Clear? Next, multiplicative inverse. Reciprocal of the rational number is the multiplicative inverse of that rational numbers. For example, multiplicative inverse of -7/8 that is equals to -8/7. Clear? If p/q is the rational number, then q/p क्या हो जाएगा, multiplicative inverse of that number. Clear? Multiplicative inverse of p/q is also written as p/q की whole power -1 भी लिख सकते हैं, since p/q की whole power -1 किसके इक्वल होती है, q/p की. Learning tips. 0 is the only rational number which have no reciprocal. 0 का कोई reciprocal नहीं होता है. Clear? Example लेते हैं हम यहाँ पे, find the reciprocal of the following 5/14 plus -6/7.
तो सिंपली हम जैसे ऐड करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे, 14 हो जाएगा, एंड हम जैसे ऐड किया था उस तरीके से करेंगे. सो दैट इज इक्वल्स टू -1/2. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल, मीन्स उल्टा करना, जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. क्लियर? सो दैट इज इक्वल्स टू -2/1 और वी कैन राइट -2. नेक्स्ट, डिविजन ऑफ रैशनल नंबर्स. Division is the inverse process of multiplication. Clear? So if P by Q and R by S are two rational numbers, then P by Q divided by R by S, that is equals to P by Q into S upon R. रेसिप्रोकेट हो जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा. एग्जाम्पल लेते हैं. डिवाइड द फॉलोइंग, -15/38 by 25/57. So -15/38 divided by 25/27. So that is equals to -15/38. मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 57 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा. सॉल्व करेंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू -9/10. क्लियर? नेक्स्ट इज इवोल्यूशन टाइम 2.4. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. सो ये हो जाएगा 4 -1 and 9. So that is equals to -4 upon 9. -4 upon 9. इसका आंसर आ जाएगा -4 upon 9. क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. सो -8 का मल्टीप्लिकेशन इस फॉर्म में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1 upon -8. क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग. 5/14 plus -11/21. 42 इसका एलसीएम आ जाएगा 15 -22 -7/42. सो ये हो जाएगा -1/6, दैट इज इक्वल्स टू -6. क्लियर? ये इसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा. नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. 10/6 मल्टीप्लाई बाय -8/25 मल्टीप्लाई बाय 11/37 मल्टीप्लाई बाय -74/77. सो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. 10/16 मल्टीप्लाई बाय -8/25 इंटू 11/37 इंटू -74/77. हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. 11 1 11, 11 7 70. क्लियर? 8 1 8, 8 2 16, 5 3 15. क्लियर? सो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये -2. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 7 3 21. ये हमारा आंसर आ जाएगा 2/21. नेक्स्ट, डिवाइड द फॉलोइंग. -9/20 एंड ये जो हो जाएगा डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड उसके बाद वाला जो नंबर है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा 50/27. सो ये हो जाएगा -1 3. सो -5/6. ये हमारा आंसर आ जाएगा. क्लियर? तो आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इस एक्सरसाइज के. नेक्स्ट, लुक बैक. A rational number is any number which can be expressed as a/b, where a and b are integer and b is not equals to 0. Every integer, natural number, whole number and fractions is a rational number. A rational number a/b is a positive if a/b are either both positive या दोनों ही negative हो. A rational number a/b is negative if both a and b are opposite sign. When the rational number p/q is multiplied or divided by 1, then the value of the rational number does not change. The rational number in its lowest form is said to be in the standard form if the denominator is positive. The positive rational number is always greater than a negative rational numbers. Clear? There are infinitely many rational number between two rational number. Two rational number के बीच में infinite number of rational numbers होंगे. The absolute value of rational number is the rational number itself with a positive sign. Rational numbers are closed under addition, subtraction and multiplication. Rational numbers are commutative, associative under addition and multiplication.
0 is called the additive identity for the rational number and 1 is called the multiplicative identity for the rational numbers. The reciprocal of p by q, that is equals to q by p. Subtraction is the inverse of addition. We add the negative of the number. 0 is the only one rational number which have no reciprocal. Division is the inverse process of multiplication. Next, let's recall. So all these chapters are based on the concept we have done in the chapter जो हमने exercise में practice किए हैं. So you have to practice all these questions. Next is multiple choice questions. Take the correct option. Every natural number is a rational number. So C is the correct option here. Here we end the chapter. I hope you understand it well. Now you have to practice it.